Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the third chapter in political science, where we are talking about the work of the state government, how the state government works. उत्तर प्रदेश राज्य में आप रहते हैं. You are staying in the state of Uttar Pradesh, and how is the work carried on in उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का सारा काम किस तरह से चलता है ये समझने की जरूरत है. We need to understand it. Got it? So while we discuss all these, इतना अभी जो हमने डिस्कस किया in the past videos, we have discussed about the working of the government. And अभी हमने वर्किंग नहीं डिस्कस किया है, अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्शन, about the people who are given the responsibility to look after the people, जिनको हमने elect करके, the people whom we have elected and taken them to the legislative assembly. आखिर वो लोग जो काम कर रहे हैं, the work that they are doing, how are they doing that work and is it satisfying? Are the people happy? These all points needs to be taken care of. When we see all these points on a large scale, in a whole, then we understand that there are two categories in this. Okay? एक तो ruling party who win the elections, go and sit in the legislative assembly में सब लोग नहीं बैठ सकते हैं. The people who have been chosen by the common people, जिनको आम आदमी ने लीडर बनाया है, ऐसे ही लोग जाके legislative assembly में बैठ सकते हैं. Only such people can go and sit in the legislative assembly. That is there. Okay, so we need to understand it properly and in detail. As a result, we understand the ruling party, where we understood about Himachal Pradesh. ठीक है, जिसमें कि 44 MLAs were there in the ruling party. सब लोग मिलके अपनी पार्टी का लीडर चुनते हैं and the leader of that party becomes the chief minister. जैसे BJP has done extremely well in the elections. If BJP has done well in the elections, then we need to understand that they are forming the government, and the chief minister who is there along with the other ministers, they have to take proper care of the people. ये तो example हो गया. And lot of decisions that are taken in the legislative assembly, किस तरह से सारे decisions लिए जाते हैं, how the decisions are taken and what are the discussions done in the legislative assembly. क्या discussions होते हैं, किन मुद्दों पे बात होती है, this we need to understand it properly. Got it, children? Ruling party is there, opposition party is there. ये रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी का जो खेल चलता है, द गेम दैट इज देयर ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टी, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गेम. गेम क्या है कि रूलिंग पार्टी इज देयर, रूलिंग पार्टी इज डूइंग देयर वर्क, अपना काम वो कर रहे हैं. ऑपोजिशन पार्टी की, देखो ऑपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमने when we have talked about the opposition party, उसमें we have understood in this opposition party there were 21 MLA जीते थे. ऐसा नहीं है कि opposition party को वोट नहीं मिला था. They have won the seats, 21 MLA जीते, लेकिन majority नहीं आई. ठीक है, ज्यादातर लोग जो है या ज्यादातर वोटिंग जो है वो फेल हो गई. As a
रिजल्ट क्या हुआ है कि वी फाइंड पीपल, मेनी नंबर ऑफ पीपल हु आर सिटिंग इन द ऑपोजिशन. तो अब देखो लेजिस्लेटिव, देयर इज द discussion going on in the legislative assembly. लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं, दिस समहाउ हैज ट्राइड टू ब्रिंग आउट द सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम. पहले तो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. सो यस्टरडे व्हाट आई हैड शोन यू द पॉइंट्स. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द नेम्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एमएलएस. सो दीज मेंबर्स हु आर देयर, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, उसमें से एक मेंबर कह रहा है कि अखंड गांव में 15 people died due to diarrhea. Please understand कि diarrhea is a big problem. Okay, and so many people are dying. Everybody is losing their lives because of diarrhea, and वो कह रहे हैं, he is saying that the government is not making arrangement for curing the people. लोगों के इलाज के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है. वो यहां पे ये बताना चाह रहे हैं दैट द पीपल आर सेइंग कि टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, लोगों की सेवा करने के लिए बहुत आगे हैं. व्हेन दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, व्हाई सो मेनी पीपल आर डाइंग? इतने सारे लोग, व्हाई आर दे लूजिंग देयर लाइव्स? सो दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, that they have to take care of the health of the people. Proper hygiene arrangement. अब एक मतलब one of the MLA has raised this issue. इतने में one more MLA stands up, and this is MLA 2. जो second MLA है, the second MLA he is there, he is saying कि people are ill. जब बीमार पड़ते हैं तो कहाँ लेके जाते हैं? हॉस्पिटल. He is saying that government hospitals are in very bad condition. खाली कहने के लिए है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है. Why is the proper doctors are not there, and medical staff is also absent in the district. Doctors are missing, and medical staff is also not available. हाँ, काम करने वाले लोग कोई है ही नहीं. जब इतने सारे लोग गायब हो जाएंगे, when so many people would be missing, तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में से पूछना चाहूंगा, how the government plans to, ये डायरिया is there, so many people are dying, आपके हॉस्पिटल्स काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स आर नॉट कमिंग ऑन ड्यूटी एट द करेक्ट टाइम, medical staff is also missing, so how is government going to solve the problem? Large number of people are getting affected, and it is also spreading. Diarrhea is like an epidemic. एक को होता है तो बहुत सारे लोगों को हो जाता है. What is government planning? ये देखो, अब heated discussion हो जाएंगे. If somebody is continuously putting allegations on me, मैं क्या चुप बैठूंगी? Will I sit quiet? No. I will be answering to the queries, and I will be answering to the questions of the people who are putting allegations on me. खाली इल्जाम लगाएंगे तो सिर झुका के सुनते थोड़ी रहेंगे. Now MLA 3 is saying
एक तो अखंड गांव का जिक्र इन्होंने किया। अखंड गांव में पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ डायरिया। MLA 1 इज स्टैंडिंग एंड सेइंग दिस थिंग। अब एक और बंदा आ जाता है जो अपनी प्रॉब्लम बताता है। MLA 1 ने बता दिया अखंड गांव में प्रॉब्लम है। MLA 2 ने भी बताया हॉस्पिटल्स काम नहीं कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? These MLAs belong to which group? Yes, in the upside, that's why I have written. अभी समझ में आ रहा है why I have written here ruling party and opposition party. The people who are ruling, पहला तो ये भी हो जाता है ना that the people who are ruling, they have become the leaders with the support of the people. आम आदमी के सहयोग से ही वो लीडर्स बने हैं। तो कहीं ना कहीं तो ऑपोजिशन पार्टी इज वेरी जेलस ऑफ दैट। डोंट यू थिंक सो? यस, ऑपोजिशन पार्टी से थिंकिंग कि वी वांटेड टू बी इन द रूलिंग पोजीशन, लेकिन ये रूलिंग पोजीशन में आ गए हैं। व्हेन दे हैव कम टू द रूलिंग पोजीशन, सो they are not feeling very happy. तो इल्जाम लगा रहे हैं। They are trying to prove that the government is not working properly. These are all political games. These are all part and parcel of politics. So MLA 1 and MLA 2 has already put allegation. इतने में one more member comes up. एक और बंदा खड़ा हो जाता है with some allegations on the government. इल्जामों का सिलसिला जब चल रहा है, when lot of people are putting allegations, so one more member is coming up here, MLA 3. वो क्या कहते हैं कि my constituency is toll patti and वहां पे भी there is serious shortage of water. So constituency, एक अखंड गांव था, ये सब गांव का नाम है। These are the names of the places. Got it? तो constituency toll patti has also serious problem of water. पानी आता ही नहीं है, और अगर पानी आ भी रहा है तो बहुत धीमे तरीके से आ रहा है। इट इज कमिंग इन अ वेरी स्लो मैनर। सो ही सेइंग वीमेन आर गोइंग 3 to 4 kilometers टू कलेक्ट वाटर। औरतों को अगर 3-4 किलोमीटर अगर दे हैव टू गो टू ब्रिंग वाटर, तो घर आके फिर क्या काम करेंगे? घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। हाउ विल दे मैनेज द कंप्लीट वर्क? सो women are traveling 3 to 4 kilometers to bring water. Okay? And अब तीन लोगों ने, everybody is putting allegations, इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं. So now the MLA 4 rises. He stands up. MLA 4. 3 people have said, एक ने कहा खंड गांव में people have died of diarrhea. The second MLA is saying कि ये सब बहस हो रही है. This is all the process and the work that is happening in the legislative assembly. ये सारी बहस जब legislative assembly में हो रही है, so now comes the MLA 4. He stands and he says, my colleagues are exaggerating the problem. So, MLA 4 says that MLA 1, 2 and 3 are exaggerating the problem. बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं. Reality कुछ भी हो, whatever is the reality, they are trying to show
एग्जैजुरेटिंग अगेन आई टोल्ड यू, बढ़ा चढ़ा के बता रहे, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना कि MLA 1, 2 and 3 have said, MLA 4 has starting. अब आप बताओ, ही इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और द ऑपोजिशन पार्टी? ऑपोजिशन ने इल्जाम लगाया, रूलिंग पार्टी का बंदा खड़े होके उस इल्जाम का जवाब दे रहा है. नाउ ही इज आंसरिंग द प्रॉब्लम, ही इज एड्रेसिंग द इश्यू कि ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट. गॉट इट? सो दिस इज वॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग. इस चीज को देखने के बाद हमको यहां पे समझ में आ रहा है कि नाउ MLA 4 is getting very irritated. He is saying government has taken steps to control the situation. कि हम कोई चुपचाप थोड़ी बैठे हुए, so much of problem is there. So he is saying that government has taken steps to solve the problem. Nobody is sitting quietly and जहां पानी नहीं है, where water is not there, water tankers have been put into service. Water tankers have been put into service. वाटर टैंकर्स को काम पे लगा दिया है. लोगों के पास अगर पानी नहीं है तो वाटर इज इजिली अवेलेबल थ्रू दिस वाटर टैंकर्स. वो आके यहां से पानी ले सकते हैं. एंड बीमार जो होते हैं ना, उनको यू माइट हैव सीन व्हेन समटाइम्स द डायरिया इज देयर, तो वो एक 1 पैकेट इज अवेलेबल इन द शॉप विच इज कॉल्ड एज ORS का घोल कहते हैं उसको. हाँ, कि कंटिन्यूअसली इफ एनी पर्सन, पानी की कमी जब शरीर में हो जाती है तो ORS का घोल पिलाया जाता है, सो दैट द पर्सन कैन, थोड़ा सा पानी बन जाता है वो. दैट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी वाटर बैलेंस. ओके, ORS packets are distributed. घोल वाले पैकेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए गए हैं. एंड गवर्नमेंट इज डूइंग टेकिंग ऑल पॉजिटिव मेजर्स टू हेल्प द पीपल. गवर्नमेंट इज टेकिंग all measures to help the people. लोगों की मदद करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है. पानी अवेलेबल नहीं था, there has been the water tankers have been sent there, and where the people who are suffering from diarrhea, it is a very good thing. अगर डायरिया हुआ है, somebody has the problem of continuously puking and loose motions, such people must be given the ORS का घोल. Okay, अब when these arrangements have been made, अब एक और MLA खड़ा हो जाता है. ठीक है, these are the people who are sitting in the legislative assembly and then doing the discussions. बहस हो रही है तो हो रही है, and discussions are happening. So discussions are happening on a very large scale. Now 1, 2, 3, 4 हो गए. 3 people were from the opposition party and 1 person is from the ruling party, जिन्होंने की कहा ऐसा बात नहीं है, आप बड़ा चढ़ा के मत बताइए, जहां पानी नहीं था वहां टैंकर भेज दिया. मतलब he is trying to defend it. In fact, one more person stands up and this is MLA 5. अब MLA 5 खड़े हो जाते हैं. What is MLA 5 saying? He is saying we have very poor facilities in our hospitals. कह रहे नहीं, hospital facilities are not up to mark. There are hospitals that do not have doctor and no medical staff. Hospital facilities are not proper. ठीक है, doctors and
मेडिकल स्टाफ इज मिसिंग, कि अगर हॉस्पिटल्स हैं तो वहां डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ नहीं नजर आ रहे हैं। अरे जिन डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है, दे शुड टेक प्रॉपर केयर दैट ऑल द अरेंजमेंट शुड बी डन एट वन टाइम। एंड अनदर हॉस्पिटल में डॉक्टर हैज गॉन ऑन अलोंग, डॉक्टर्स को छुट्टी का इतना, व्हेन सच एन इमरजेंसी इज देयर, मेडिकल स्टाफ है ही नहीं, दे हैव नॉट बीन अपॉइंटेड, एंड इन वन हॉस्पिटल doctor has gone on a long leave. हालत इतनी बुरी हो चुकी है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, हाउ कैन द डॉक्टर टेक सच अ लॉन्ग लीव? और वो छुट्टी लेके डॉक्टर्स चले गए हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस तरह की चीजें लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ओके, सो दिस इज अ शेम। कंडीशन खराब होती जा रही है। सो ORS पैकेट्स आप बंटवा रहे हैं। नाउ ही सेड ना कि हमने जो द पीपल हु आर नॉट वेल और हु आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, उनको हमने ORS का गोल दिलवाया है। सो ही सेइंग कि ओनली ORS का गोल दिलवाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द ORS पैकेट्स। ORS packets are reaching to all families or not? ORS packets are reaching to all families, मतलब सबको मिलना चाहिए ना, और नॉट? मस्ट बी चेक। इसको आप चेक तो कीजिए, किसी को ड्यूटी पे लगाइए who will be seeing that the people who need help at that time, some people are already there to help them, उनको मदद करने के लिए लोग वहां पे मौजूद हैं। तो ORS का पैकेट्स आपने पहुंचवा दिया, यू हैव मेड द ORS पैकेट्स अवेलेबल, बट वही बात है दैट ORS पैकेट्स आर, इज इट रीचिंग टू द पीपल? क्या सारे लोगों के पास वो ORS का गोल पहुंच रहा है? सो MLA 5 ने अगेन कहा, ठीक है, MLA 4 सेट कि भैया ORS का पैकेट दिलवा दिया, टैंकर्स लगवा दिए, पानी भी है। तो MLA 5 इज सेइंग कि अच्छा खाली पैकेट बंटवा दिया, इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर? आर द डॉक्टर्स वर्किंग? इज द मेडिकल स्टाफ स्मार्ट एनफ? व्हाट इज द मेडिकल स्टाफ डूइंग? व्हाट आर द डॉक्टर्स डूइंग? दिस इज अ शेम। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यस, व्हाट हैपेंस इज दैट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, when all these kind of meetings are going on, they talk in this language only. क्या कर रहे हैं आप लोग? घोल खाली बंटवा दिया है। क्या उन लोगों को घोल मिला भी है कि नहीं मिला है? आपके घोल तो पहुंच गए, ट्रक लेके आपका ORS का पैकेट्स इज देयर, इज इट रीचिंग टू एवरीवन? तो अब एक और MLA खड़े होते हैं, वन मोर MLA स्टैंड्स अप, MLA 6 इज स्टैंडिंग अप। इन्होंने क्या कहा? MLA 6 इज सेइंग कि ऑपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। He is now being very furious. Opposition members are unnecessarily blaming government. फालतू के इल्जाम लगा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल द पॉसिबल वर्क एंड गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प द पीपल इन ऑल पॉसिबल मैनर्स। पहले जो गवर्नमेंट थी, द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। बोले हम तो अभी आए हैं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो अब वो क्या करते हैं? इल्जाम किसी और के ऊपर लगा देते हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट हैज नॉट मेड एनी अरेंजमेंट। साफ सफाई का ध्यान तो सबको रखना चाहिए ना, फॉर सैनिटेशन। साफ सफाई का इंतजाम इन्होंने नहीं देखा है, सैनिटेशन का इंतजाम इन्होंने नहीं किया पहले वाली गवर्नमेंट ने। सो अब हम सफाई कर रहे हैं। वी हैव टेकन द ड्राइव टू क्लीन द गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। सालों से वहां कूड़ा है,
वी आर क्लियरिंग ऑल दैट गार्बेज, वो सारा कूड़ा हम साफ कर रहे हैं. द गार्बेज इज क्लीन्ड बाय द गार्बेज is cleaned by present government. So just see how smartly he is answering कि कूड़ा तो पहले वाले छोड़ के गए, साफ सफाई तो हम कर रहे हैं. Just see, आप हमारे ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? How can you put such an allegation? तो ये अब जो है, now the discussions are going on. पहले में हमने पढ़ा कि there is debate in the legislative assembly, members were debating on the actions that have been taken by the government, क्योंकि what did we know that MLAs are together responsible for the work of the government. Okay, आप ये देखो, there are two groups which were working, there are two groups which are functioning. दो ग्रुप जो है, एक ग्रुप इल्जाम लगा रहा है, दूसरा ग्रुप डिफेंड कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है. बचने की कोशिश क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन तो देंगे. एमएलए बने हैं, मिनिस्टर्स बने हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोगों ने इलेक्ट करके उनको वहां पे बिठाया है. तो दे आर ट्राइंग टू क्या, दे आर प्रूविंग कि दे आर नॉट सिटिंग आइडल, आराम से बैठ के अपना खाना थोड़ी खा रहे हैं. They are very much involved into all kind of activities that are going on. जितना भी काम वहां हो रहा है, उन सारे कामों में बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहे हैं. But still the opposition is putting allegations. So all the MLAs are together responsible for the work of the government. All MLAs are responsible for the work of the government. गवर्नमेंट के काम के लिए सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल हैं, सब लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. एंड ये क्या होता है, जब when we are talking about government refers to government departments and various ministers who head them. ठीक है, गवर्नमेंट जब हम कह रहे हैं ना, when we say government, so it includes all the government departments and ministers. सब लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, सब लोगों को मिलके काम करना है. इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन और टू पर्सन. 2 या 3 लोगों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरा का पूरा ग्रुप है जिसके हु आर इन्वॉल्व इनटू दिस वर्क, और ये सबको मिलके ये काम देखना है. ओवरऑल हेड इसमें क्या होता है, ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर. तो सबसे ज्यादा जवाबदेही किसकी बनती है? चीफ मिनिस्टर की. सो ओवरऑल हेड इज द chief minister, ultimately responsible for all the activities that is happening. Okay, and अगर ये कहें कि the executive part of the government is जो ये the people who are carrying on this work, they are the executives. These people are एग्जीक्यूटिव्स. अभी एग्जीक्यूटिव्स का भी मतलब समझो. पीपल हु एग्जीक्यूट द वर्क. कानून बना हुआ है, नियम बना दिए गए हैं, इन कामों को जो आगे ले जाएगा, इस कानून की जो देखभाल करेगा, दे आर द पीपल हु आर एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, टॉप मोस्ट पीपल इन द सिस्टम. Ultimately, if something goes wrong, they are the ones who are responsible for that. So all the MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature.
all members who gather in लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के जो लोग काम कर रहे हैं आर लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव्स वो हैं, जैसे सम मिनिस्टर इज देयर, ही हैज पास सम ऑर्डर, उस ऑर्डर का पालन जो लोग करेंगे, उस ऑर्डर को आगे जो लोग लेके जाएंगे, दे आर द एग्जीक्यूटिव्स। उसके आगे का जो काम और जो लोग वहां बैठ के रूल्स बना रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दे आर द लेजिस्लेचर। We'll be discussing it more in the next class, children. Till then, thank you so much and all the best to you.